Uh, okay, so good evening, all of you. This is basically the important session of APM. That's like why I'm saying it is important because it is the last session. Uh, आज हम इसको कंक्लूड करेंगे कंप्लीटली. हमने जो एपीएम के जो 10 कंप्लीट सेशन हुए थे उसमें हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले क्या किया. बट द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी वांट दैट आई वांट टू स्पेशली डिस्कस दैट बेसिकली द ऑपरेशंस, द काउंट ऑफ ऑपरेशन इज बेसिकली related to that's what we have discussed in the previous lectures, method of root finding, and after that we have discussed some metrics like calculations, and after that we have discussed the solution of systems like ax equals to b. Okay, अब मैं म्यूट कर दूं जो भी है ना उसको. Okay, so basically in the first half of the session we have discussed what what are the methods that how can we solve the non-linear equation. Basically that's what the method, Newton-Raphson method, regular falsy, secant method, bisection is the one of the easiest method and the basic method. And after that we have discussed the solution of system of linear equation. And in addition, we have also discussed the Newton scheme also for nonlinear systems. That was the important. And we have also discussed the order of convergence for that. Okay, why order of convergence is important? Can someone explain me why order of convergence is important for us? Why we are studying the order of convergence, and what is the physical significance of order of convergence? You might have studied about in your graduation or in your classroom courses. Do you know about what is the order of convergence? Yeah. What? Okay, yeah. He's saying the if order is more than the converging speed is fast. Okay, that's what you are saying. Okay. Yeah. Order of convergence is something related to the solutions speed, or basically we can say converging speed. So basically whenever we are solving any method using the numerical schemes or numerical in the approach of the numerical, there will not be a exact value, of course, है ना. वहां पे कभी भी आपको exact value नहीं मिलेगा. You will get an approximate value for that. So we'll just compare the approximate value to the exact value and we'll find the error. Okay. और उसके बाद में हम कहेंगे कि हमारा मेथड इतना इसके लिए सूटेबल है, ये इतना इसके लिए वर्क कर रहा है, या इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर कंक्लूडिंग यूजिंग द एरर स्पेशली. तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा था स्पेशली कि जो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, दैट वाज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द फाइंडिंग द रूट. ओके, सो द बाइसेक्शन मेथड. So bisection method is nothing but it is a plus b by 2, which x is belonging from the closed interval, which is the root lies in the interval basically. तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि इसमें हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या ना कितने आइटरेशंस लग रहे हैं. अराउंड आई एम सेइंग द 18 to 19 आइटरेशंस मुझे इसमें करने में लग रहे हैं. एंड आई होप आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल भी किया होगा कि इसी इक्वेशन को द सेम माय x is what the f of x is equals to 0 is my linear or non-linear might be transcendental equation. तो इसको जब हमने इसको सॉल्व किया तो it is basically ना 18 से 19 iterations इसमें लग रहा है. And the same if I am going to solve this equation using the Newton-Raphson method, तो मुझे वहां पर क्या हो रहा है 5 to 6 iterations में सेम जो एरर है, सेम जो भी मेरा बेसिकली डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो मिल रहा है. तो हमने क्या सीखा कि इस मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और इस मेथड के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है. सो बेसिकली दिस मेथड इज कन्वर्जिंग लीनियरली. ओके, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 1 है, एंड इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 2 है. इट इज क्वाड्रेटिकली इंक्रीजिंग. सो बेसिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अगर कोई न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, उसकी स्टेबिलिटी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. बिकॉज अगर हम किसी में अप्लाई कर रहे हैं किसी न्यूमेरिकल स्कीम में, तो वहां पर क्या हो रहा है कि ओके, सो वहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो भी क्या हो गया, प्लीज बैठ जाओ. तो
जब भी हम किसी न्यूमेरिकल स्कीम को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमको पता होना चाहिए कि मेथड इज स्टेबल और नॉट, मेथड इज कन्वर्जिंग टू दी लाइक अप्रोप्रिएट आंसर और नॉट। तो वो चीज हमें यहाँ पर देखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा मेथड की स्टेबिलिटी, मेथड की कन्वर्जेंस कंडीशन और उसके बारे में। ओके, दिस व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन दी लाइक प्रीवियस सेशंस कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर। नाउ today's topic is basically related to the operation count, or basically you can say the time computation, because आपने सुना होगा इन जनरल प्रॉब्लम वी विल हैव समथिंग कि एक आदमी है ना एक दिन में इतना काम करता है, तो 10 आदमी 5 दिन में उस काम को, मतलब उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यू माइट हैव स्टडीड सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दी योर लाइक जनरल थ्योरी। तो बेसिकली हमें यहां पर ये चेक करना है कि अगर मेरे इस एफ ऑफ एक्स को न्यूटन रैप्सन मेथड इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सॉल्व कर पा रहा है, सो न्यूटन रैप्सन मेथड उस पर्टिकुलर मेथड को कितने टाइम में उसको कंप्यूट करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दैट इज व्हाट कॉल्ड द टाइम कंप्यूटेशंस। क्या कहते हैं उसको? हम टाइम कंप्यूटेशंस कहते हैं। और टाइम कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशंस। आर यू गेटिंग? सी अगर मैं किसी जनरली बात करता हूं, मैट्रिक्स का कोई मल्टीप्लीकेशन मुझे अगर करना है, तो यू डू यू नो द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, यहां से हम रो लेते हैं, यहां से हमारे पास में कॉलम्स होते हैं, और इस टाइप से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, सो इन दिस केस वी विल हैव मल्टीप्लीकेशंस एंड एडिशन टुगेदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें मल्टीप्लीकेशन भी होगा एंड एडिशन भी होगा। सो द नंबर ऑफ ऑपरेशन, द काउंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स how many operations we are performing while calculating the matrix multiplication. Are you getting? So basically our aim is to find the time computation. Okay, to find the time computation or to calculate the time computation, we should have an idea about how many number of operations will be there in a particular algorithm, in a particular numerical method. So in this particular session we will discuss how many operations and how to find the operation count of a particular scheme. It may be the matrix multiplication, it may be the bisection method, regular falsy method. Okay, a simple, if I have my Newton-Raphson method, that is what xn plus 1 is equals to xn minus f of xn divided by f dash of xn. Okay, how many operations you are you can conclude from this formula? How many operations? Okay, what are the operations performing in this formula? Just tell me this. What type of operation in this formula you can observe? Okay, yeah. One thing is subtraction, and then divide, and then function value. Na, we are putting the value in the function. Okay. It is what the function value, and then derivative. Are you getting? So I think it is 2, 3, and 4. Minimum I can say there are 4 operations. Okay. अब मुझे एक सब्ट्रैक्शन को करने में कितना टाइम लग रहा है? I say that it is what the 0.1 second. एक डिवाइड को करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है? मेरा फंक्शन ये जो एफ ऑफ एक्स है, हाउ इट इज कॉम्प्लिकेट दैट आई कैन पुट द वैल्यू एंड आई विल गेट द वैल्यू, उसमें कितना टाइम लगेगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? द टाइम कंप्यूटेशन विल डिपेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. इज इट क्लियर? Time computations will depend on all these factors, that how much time it will take to compute one operation. Are you getting point? Is it clear to everyone? Okay. तो बेसिकली हमारे पास में हमने एक सिंपल देखा था कि न्यूटन रैप्सन मेथड हमारे पास में ये है. अब मैं थोड़ा सा in the previous lecture we have discussed the ax equals to b, that is what the system of linear equation. Okay, so I'll start with the ax equals to b. I don't know what is Gauss elimination method, what is Jacobi iteration method. Okay, we are starting from the Cramer's rule. We have studied in your 10 plus 2 Cramer's rule. What is the Cramer's rule? x1 is equals to, you will find the derivative of 1 replacing with the one column, and you will divide the whole determinant, or not derivative, determinant, sorry. Okay, I think just let me explain by one example. Like you will relate at the end of this session, you will relate the how can we find the time computation, and how like the Python or the how much the programming is important for the like general life, you know.
आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो हमें सीखना है और वो आपको आज मैं रियलाइज कराना चाहता हूं, तो प्लीज अच्छे से कनेक्ट करिएगा. So if I have a matrix A, B, C, D, and yeah, determinant it is what the determinant, and I want to calculate this system, then Cramer's rule में हम क्या करते थे? Okay, here it is my F1 and F2 क्या करते थे आप? A, C, F, you will replace this column and divide by the determinant A, B, C, D. यही तो करते थे. This is what your one value X1 and X2 क्या होता था? जिसमें आप F1, F2 and ये हो जाता B, D divided by A, B, C, D. यही तो करते थे simple. Is it clear or not? Okay. So, can you tell me what is the minimum requirement to solve this system of linear equation? What is the minimum requirement? What is the minimum requirement to solve this system of linear equation? What? Yeah, tell. Okay. Determinant non-zero. Determinant non-zero. Okay. ओके, सो बेसिकली आप सभी के स्टेटमेंट को अगर मैं कंक्लूड करूं तो सिंपल सा, मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ए शुड बी, माय कोएफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ओके, जस्ट ए इनवर्स शुड बी नॉन जीरो. बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिकॉज सॉरी ये ऐसे नहीं कह सकता. डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो. इट मींस माय ए इनवर्स इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए divided by the determinant of A. It means this determinant of A should be non-zero. Okay. अब सबसे पहले अगर मुझे सिस्टम को सॉल्व करना है तो मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट. इज इट क्लियर? अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम कंप्यूटेशंस लगेंगे एंड हाउ मेनी ऑपरेशंस विल बी देयर. ओके, तो वो हमें कैलकुलेट करना है. जस्ट गोइंग टू दैट टॉपिक, मैं आपको सिंपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम टाइम कंप्यूटेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आप स्लाइड्स पे आ जाइए, वहां पे आपको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. एक बार स्लाइड्स ओपन कीजिए. ओके, सो बेसिकली या in this we'll discuss the computational cost matrix multiplication and then we'll go for the matrix determinant and then we'll go for the system of. ये आपको मेन हमारा एम है, यहां पर पहुंचना है. कीप इन माइंड यहां पर हमें पहुंचना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जस्ट बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है या फिर उसका है, वी कैन से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और बेसिकली वी कैन से दैट टाइम कंप्यूटेशनल कॉस्ट. तो सिंपल, अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. Clear? Okay. So in the slides I have this. So start with the matrix multiplication. Then A and B are the square matrix. Obviously, हमने एक simple example लिया 2x2 matrix का, square matrix का. और अगर उस square matrix में मुझे उसका, भैया प्लीज, जैन भैया प्लीज सिट. तो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है? ऑपरेशन को काउंट करना. ओके, लेट्स स्टार्ट. I have this matrix A, which is a square matrix, and this is what B. तो ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है. कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? इसमें 4 ही होंगे दोनों में एलिमेंट. ओके, सो 4 एलिमेंट यहां पे है एंड 4 एलिमेंट यहां पे. ओके, अब एक सिंपल सा बेसिक ट्रिक बताता हूं आपको इसको कैलकुलेट करने का. जब भी हम, आप एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना तो 4 टाइम्स तो मल्टीप्लाई होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक रो की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर एक रो की बात कर रहा हूं. आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट ओनली वन रो. एक टाइम में 4 बार वो मल्टीप्लाई होगा और 3 बार वो ऐड होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इट मींस आई कैन जनरलाइज इट. n multiplications will be there and n-1 additions will be there. मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाऊंगा जिस पॉइंट पर हमें टाइम कंप्यूटेशंस कैलकुलेट करना है. एक्चुअल में इसका ऑर्डर बताऊंगा. ठीक है, तो n आपको मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने हैं, n-1 एडिशंस परफॉर्म करने हैं फॉर अ सिंगल रो. एक सिंगल रो के लिए n मल्टीप्लिकेशंस, n-1 एडिशंस. हाउ मेनी रोज आर देयर और हाउ मेनी एलिमेंट? और फॉर अ सिंगल रो कह सकते हैं, और फॉर अ सिंगल रो में एक सिंगल एलिमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जस्ट चेक इट. आपके पास पेन कॉपी होगा, आप एक चेक करो जल्दी से. 2x2 का एक एग्जांपल लो. या डू इट फास्ट, क्योंकि आज की जो चीज है ना, आई वांट टू रियलाइज यू.
जस्ट चेक इट एंड बताओ कि एक एलिमेंट कितने बार मल्टीप्लाई होगा और कितने उसके अंदर एडिशन होंगे, एक एलिमेंट पर्टिकुलरली। जस्ट चेक इट एंड टेल मी फॉर 2x2 सिस्टम ओनली। यू कैन टेक एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 1 0 0 1, कोई कुछ भी ले सकते हो, और ऐसा करके मुझे लिटरली बताओ कि व्हाट डेटा यू आर गेटिंग एक्चुअली, कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूं इतने मल्टीप्लिकेशन इतने एडिशन होंगे। ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। अगर मैं इस एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और एडिशन होगा इसका, तो 1 + 0। आप आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट 1 × 1 एंड 1 × 2, तो कितना आ गए बताओ? 2 मल्टीप्लीकेशन आ गए और एक क्या आ गया, एडिशन। इट मींस n मल्टीप्लीकेशन एंड n - 1, it is for one element in one row, and how many element I have? 4 element. It means what? n square element. Are you getting the n square element? So n square into n square. इसमें इंक फिल नहीं किया है, वो वाला मार्कर नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। तो कितना हो गया यहां पर बताओ? n क्यूब हो गया। कितना हो गया बताओ? and it is what? n cube minus n square. So how many multiplications will be there for a whole matrix? एक एलिमेंट के लिए अगर आपके पास में n, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक एलिमेंट के लिए आपके पास में n नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस है, तो n स्क्वायर एलिमेंट के लिए कितना होगा? n क्यूब नहीं होगा क्या? होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? n क्यूब, एंड ये क्या हो गया? ओके, नाउ you will have n क्यूब number of multiplication and n square into n - 1 number of addition. Okay, एंड अगर आप इनको ऐड करोगे तो दिस इज व्हाट योर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज व्हाट योर एडिशन। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना है ना। ऑपरेशंस तो कुछ भी हो सकते हैं ना, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस n स्क्वायर, एंड इट इज व्हाट? 2n क्यूब माइनस, इज इट क्लियर? ओके, अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी एक like there is a concept small o and big O, there is a concept in numerical mathematics, that is what the small o and big O, it is what representing the order of a system. Okay, it is called the big O. Okay, and ये इसके like there is a huge theory behind this. I don't want to go for that. आपको just simple बताता हूं कि small o and big O का concept क्या होता है, जिसके अंदर एक्चुअल में आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है। ओके, ओ मींस यू कैन रिलेट विद द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज रिलेटेड टू हाईएस्ट इंटीजर पावर ऑफ द नंबर। जो भी आपने कैलकुलेट किया उसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। सो दैट विल बी, बाकी सबको आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा फॉर n लाइक टेंडिंग टू 0। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं इस n क्यूब के रेस्पेक्ट में n स्क्वायर की बात कर रहा हूं। इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट विल बी नेग्लिजिबल इन विद द रेस्पेक्ट ऑफ n क्यूब। सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग माय बिग O इज व्हाट? n क्यूब। इसके साथ में कुछ भी स्केलर है आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। इसके साथ में कुछ भी अगर स्केलर है उसको कंसीडर नहीं करना, जस्ट आपको क्या कंसीडर करना है कि व्हाट इज दैट टर्म, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट टर्म। एक्चुअली क्या आ रहा है इसका बिग O? n क्यूब। इट मींस व्हाट? इस एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करने का जो ऑर्डर है वो है n क्यूब। कितना है? n क्यूब। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये बहुत सिंपल सी स्कीम है और मैं यहां से आपको लेके जाऊंगा गॉस एलिमिनेशन एंड एलयू डिकम्पोजिशन पे। ओके, क्लियर? तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, ये जो हमने n क्यूब कंसीडर किया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, दिस इज फॉर व्हाट? 2x2 सिस्टम। ओके, इफ आई विल हैव a 1000x1000 सिस्टम, Are you getting the point? Okay, yeah, you know this is what the recurrence relation. अगर आप इसमें satisfy करोगे 2, तो how many number of elements that you will get? Total number of element operations. अगर मैं 3 रखूंगा तो it will satisfy the whole ना, हर एक सिस्टम के लिए ट्रू होगा ना। So this is true for every n greater than equals to 2. Okay,
तो बेसिकली हमने एक रेकरेंस रिलेशन स्टेबल उसमें बना दिया है जिससे कि हम हमारे किसी भी सिस्टम के लिए सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ आई विल हैव अ 1000 क्रॉस 1000 सिस्टम एंड नाउ आई एम coming to the point is what the how can we find the computational cost. पाइथन में कंप्यूटेशन कॉस्ट फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है, आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हो, डेट टाइम डॉट इनिशियल एंड डेट टाइम फाइनल, एंड वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि 0.001 सेकंड में मैंने ये कंप्यूटेशन कंप्लीट किया. बट मैनुअली आपने कैसे कंप्लीट उसको कैसे कंप्यूट करोगे, तो वो मैं तरीका बता रहा हूं. अगर मुझे मेरा कंप्यूटर है या फिर कोई भी है, वो 1000 क्रॉस 1000 को सिस्टम को सॉल्व करने के लिए 1.1 सेकंड ले रहा है. कितना ले रहा है? 1.1 सेकंड. ओके, अगर 1000 क्रॉस 1000 के सिस्टम को सॉल्व करने पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैटलैब, मैथमेटिका या मैपल या पाइथन जो भी आप यूज करते हैं, वो 1.1 सेकंड ले रहा है. अगर मुझे 200 क्रॉस 200 का सिस्टम है, इफ आई विल हैव अ 200 क्रॉस 200 सिस्टम, सॉरी 2000 यार 100 बोल रहा हूं, ठीक है, 2000 क्रॉस 2000 का सिस्टम मेरे पास में है, मतलब मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे करना है तो इसका टाइम कंप्यूटेशन कितना होगा? कितना होगा बताओ? 2.2. ओके, वी हैव अ रेकरेंस रिलेशन, हम फाइंड कर सकते हैं उसे. ओके, लेट्स चेक इज इट 2.2 और नॉट. ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट? हाउ कैन वी कैलकुलेट? ओके, सी, ये मेरा रेकरेंस रिलेशन आया एंड ये मेरा बिग ओ आया, ठीक है, इट इज गॉट बिग ओ. अब यहां से हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को विल जस्ट डिफाइन इन द फॉर्म Cn एंड क्यूब. व्हाट इज Cn? ओके, हमने जो रेकरेंस रिलेशन यहां पे बनाया है, इट विल बी, मतलब क्या होगा, एक दो ऑपरेशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं. आर यू एग्री विद दिस और नॉट? एक दो ऑपरेशंस ऊपर नीचे, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट. न्यूमेरिकल में हर चीज अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है. दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं यहां पर, कोई एक ऐसा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है जिससे कि वो इक्वल हो जाए. आर यू गेटिंग और नॉट? अगर मान लीजिए मेरा n फैक्टोरियल, या फिर मैं बात करता हूं 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 6. 3 फैक्टोरियल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू इज 4, and I want to equivalent these both things, then I can multiply something here. Is it clear or not? मतलब मैं कुछ ऐड कर सकता हूं, कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसके अंदर कुछ ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकता हूं जिससे कि इक्वल हो जाए. नाउ इट इज अप्रोक्सीमेट, बट आफ्टर एडिंग सम cn will be something, कुछ भी हो सकता है, and I will find this. Are you getting the point or not? Okay, now this is what my number of operation, this is the recurrence relation. From this I have this big O, that is what the n cube, and अब मैंने इसमें से एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसमें से फाइंड कर लिया. ओके, नाउ यहां से मुझे क्या करना है, इसका टाइम कंप्यूटेशंस निकालना है, ठीक है. तो अब ये मेरा n था, ये जो डाटा है वो किसके लिए है? I से n is equals to 1 के लिए, and it is just twice of this. It is what n is equals to, it is a twice or not? Okay, it is what n is equals to 2. अब मैं क्या करूंगा, जो dn है उसको मैं d2n से रिप्लेस कर दूंगा. आर यू गेटिंग? दिस इज व्हाट माय dn, जो टाइम कंप्यूटेशन उसके अंदर लगा, ये dn के लिए, ये dn पर कंप्यूट हो रहा है. एंड नाउ इट इज व्हाट d2n इज इक्वल्स टू व्हाट c2n एंड 2n पावर 3. इज इट क्लियर? सो इट इज व्हाट cn एंड इट इज व्हाट माय c1. ये वो नंबर है, ये वो क्वांटिटी है जो उसको इक्विवेलेंट करेगा उसके नंबर को, टाइम को, ठीक है. अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा. And it is what C2n, and next will be my 2n cube. Is it clear? Clear? Okay. Now, what is my Cn? Yeah. Now, अब एक काम करो यहां से, ये क्या हो जाएगा? 8n cube होगा या नहीं होगा? 8n cube हो जाएगा. Now, can you get the idea कि इसका कितना टाइम कंप्यूटेशन कॉस्ट जाएगा? कितना जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ, ओके, आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन. अगेन इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन. यू विल गेट द कंफ्यूज विद Cn. यू विल गेट द कंफ्यूज विद दिस Cn. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम ऑफ दिस, एंड दिस इज व्हाट माय लाइक प्रीवियस वन. This is what my previous one, and 8 time of this, it means it will take 8.8 seconds, not 2.2.
Are you getting the point? Is it clear? So just twice करने पर you will get this much time. Are you getting the point or not? ये किसके लिए था? Just for matrix multiplication. Now you want to calculate the determinant. After that you will calculate the adjoint. After that you will take the ratio. So how much time will my program, like my program will take to compute just A inverse? And after that उस A inverse को मैं इस B से भी multiply करूंगा and then I will get the solution. Are you getting the point? Can you visualize this thing or not? Are you getting? So it is not exact. It is all about the approximation. It is all about the approximation. Okay. Now ये इसके अंदर लिख रखा है मैंने, स्लाइड्स के अंदर है ये सारा, तो you will get the almost 8 times उसका. ठीक है. Next come to the slides हो रही है ना? Okay. Next come to the basically number of operation to calculate the A inverse. Clear? ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है क्या? ठीक है. तो अब हम बात करते हैं बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा और उसमें कितना क्या कंप्यूटेशन कॉस्ट लगेगा और बेसिकली हमें ऑपरेशंस निकालना. आपको समझ आ गया कैसे टाइम कंप्यूटेशन करना है? नाउ आई विल जस्ट construct this recurrence relation. You can get the idea कि how much time and how much computation cost it will take. Clear? Okay. So let's start the next. Now I want to calculate for Ax equals to B. Okay, so it is my Ax equals to B, and what is x is A inverse B. This is what the solution. X is A inverse B, and what my A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A, where determinant should not be equal. It means determinant हमको calculate करना पड़ेगा. Okay, so we'll start with the determinant. So what is the determinant for matrix? A11, A12, A21, A22. What is the determinant? A11, A22 minus A21. Okay, this is one multiplication. This is subtraction, second operation, and this is what? The third operation. So how many operations are there? 3 operation in 2 cross 2 system. Okay, एक 2 cross 2 के मैट्रिक्स का मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो I will get the 3 number of operations. Okay. Now, can you generalize the determinant? I think we will have a recurrence relation. You might have studied about the minor and cofactor. Minor and cofactor. So, what is the generalized form of this? It will be okay. You know, हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रो के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं, कॉलम के किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं. डू यू नो दिस थिंग और नॉट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं यहां से तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? ओके, सो आप किसी की भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं. सो यू विल हैव अ रेफरेंस रिलेशन इज व्हाट? जे स्टार्ट्स विद 1 टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? जे स्टार्ट्स विद 1. ये मैं रो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं क्योंकि आप जब रो के रेस्पेक्ट में चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जे चेंज करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट माय आई एंड दिस इज व्हाट माय जे. जे इज कॉलम, तो जे चेंज करना पड़ेगा ना. जे चेंज होगा वहां पे, जो रेफरेंस रिलेशन बनेगा ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक कोफैक्टर. सो इट इज व्हाट aij एंड cij, एंड आई एम राइटिंग हियर. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ना. -1 पावर i प्लस j. कोफैक्टर तो पढ़ा ही होगा आपने. एंड mij. सी व्हाट इज माय mij? माइनर ना. इसके रेस्पेक्ट में माइनर ये हो जाएगा. आर यू गेटिंग? इसके रेस्पेक्ट में माइनर ये हो जाएगा. और इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसका साइन. यू नो साइन, पोजीशन साइन आपको पता ही होगा. किसी मैट्रिक्स में प्लस होता है, माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है ना. आर यू गेटिंग? अल्टरनेट चलता है ना. सो अगर मुझे इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में माइनर फाइंड करना तो ये हो जाएगा. और इसका डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट कोफैक्टर. इसी से तो हम aij प्लस वाला फॉर्मूला बनाते हैं. तो ये वाला एक आपके पास में क्या होगा? डिटर्मिनेंट का ना एक रेफरेंस रिलेशन बनेगा, एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनेगा. Okay, and I can write this as this: j is equals to 1 to n and aij, or -1 power I plus j, and this is what? mij. Is it clear? समझ आया? Clear? Now
अब मुझे डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे 2x2, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि क्या को फैक्टर होता है, क्या माइनर होता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि हमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज आवर एम, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हमें एक वापस से रेकरेंस रिलेशन बनाना है एंड देन हमें उसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है ना सबको क्या कर रहे हैं? ये कोफैक्टर है, ये माइनर है, ये डिटर्मिनेंट का जनरल है। ये डिटर्मिनेंट है बेसिकली जहां पे Cij इज द कोफैक्टर। आई एम राइटिंग हियर Cij इज cofactor and this is what my minor. Okay, now I want to calculate the number of operations and I will just write a recurrence relation and just check कि वो सही है या नहीं है उस चीज के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन लिख रहा हूं, दैट इज व्हाट द dn is equals to n dn minus 1 plus n minus 1. See, this is all about my multiplication and this is what addition या सब्ट्रैक्शन कह सकते हो बेसिकली, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यू नो दिस थिंग आई कैन राइट लाइक दिस बिकॉज दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ वन ऑफ माय माइनर दैट विल बी, या ऐसा हो सकता है ना, ये -1 पावर 1 प्लस 2, जो कि उसका लाइक सॉरी या 1 प्लस 2 कह सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट रो और लाइक सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बिकॉज इट इज प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, तो फर्स्ट रो या सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर ये वाला चीज क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा क्या, अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग। सो इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, इट इज व्हाट द क्वांटिटी इज जस्ट नेगेटिव, ये क्वांटिटी ही नेगेटिव होगी, तो इसको मैं एडिशन भी कह सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक सब्ट्रैक्शन, जनरली हम सब्ट्रैक्शन लिखते हैं ना, ये एक्चुअली यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये क्वांटिटी नेगेटिव होती है, इसका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये ऐड ही होता है हमेशा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, इट इज व्हाट द रिकरेंस रिलेशन, और इससे ये जो चीज बना है यहाँ पर, ये है इसका मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ओके, सी कितने मल्टीप्लीकेशन है, 2 मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन कितना है, 1। तो एडिशन हमेशा n-1 होगा एंड दिस इज व्हाट द क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन। नाउ इट इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, n इज 2, सॉरी n ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 बिकॉज ये 3 से स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर आप कहेंगे अगर हम इसको ओके एक बार के लिए अगर मैं n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, 3 आना चाहिए ना, मतलब d2, दिस इज व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड हियर, d2 इज माय नंबर ऑफ ऑपरेशंस ना, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो d2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 d1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। व्हाट इज d1? 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने में कितने ऑपरेशन लगेंगे आपको बताओ? ये मेरा एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने में कितने ऑपरेशन लगेंगे, 0 ऑपरेशन। सो व्हाट, d1 इज इक्वल्स टू, okay, so d2 is equals to 2, 0 plus 1 plus 1, is it 3? मतलब ये is equals to 2 के लिए भी सही हो गया। Now can you find for d3, like for 3 cross 3 system, like d3 is equals to what, 3 into d2 plus 1 plus n, yeah, 3 minus 1, can you calculate this, calculate what is the value, क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ओके, इट इज व्हाट द d4, sorry d3 is my 14, yeah, just calculate for d4, what is the value for d4, fast, 23, just check it, okay, okay, it is what the 23, something else, 63, okay, so this is 63, is it correct? किसी और का कोई आंसर है, किसी और का कोई आंसर है? ओके, अगर ये है सही तो फिर ये कैलकुलेट करो, d5 कैलकुलेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d5? अगर नहीं दिख रहा चेयर ऊपर करो मैडम, आपकी चेयर नीचे है। 320, ओके, वन आंसर इज 324, अनदर, बिकॉज 2 तो आने ही चाहिए ना, 329, ओके, अनदर, हिमांशु 400, 34, d4 is 73, okay, you know this is what the numerical analysis, you are getting the error,
You are calculating, you are doing, you are working, your like computation is going on, but this is what the error. Are you getting? Like जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मिलेगा, हो सकता है ना एरर तो, but it will be harmful. See, listen, error is useful and error is important, but it will be affect your stability. You know what is stability? Okay, something जो machine learning पे काम कर रहे, they can understand what I want to say. Small change in input, if the output will drastically change, that will be the unstable system. And okay, see, क्या नाम है, रिचा, ये 73 किसका आया था? सोनम, नो 73 रिलेशन 73 आपने इनपुट डाला, और जब आप D1000 कैलकुलेट करोगे तो देयर विल बी डिफरेंस और नॉट? अभी तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 का है, और अगर इसको लेके आपने कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल D1000 है और जो आपके अकॉर्डिंग D1000 है, दैट विल बी, देयर विल बी डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. So it means it is what you are understanding. This is what the error, yaar. What a simple thing in numerical analysis. Are you getting the point? Are you getting? Okay. Next. So ये आएगा 324. Okay. ये कितना आएगा? 324. Okay. आगे मैं आपसे मजदूरी नहीं कराऊंगा. चलो, इतने से हमारा काम हो जाएगा. तो बेसिकली हमने D3, D4, D5 ये सब कैलकुलेट कर लिया. जब भी हम किसी चीज को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो वी विल ट्राई टू अप्रोक्सीमेट दैट वैल्यू टू अ नोन वैल्यू और नोन फंक्शन और नोन मैथमेटिकल ऑपरेशन. इट मींस आप अगर देखना चाहें, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, ओके लिसा प्लीज डोंट डू दिस. ओहो, आप तो दिख नहीं रहे थे मेरे को, कुर्सी ऊपर करो थोड़ा, अभी माथा ऊपर उठाया, मेरे को कोई है वहां पे भी. ओके सी, ओके सो बेसिकली जब भी हमारे पास में कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसको किसी में, यू नो व्हाट इज द कर्व फिटिंग? यू नो कर्व फिटिंग ना? व्हाट इज दैट? इफ आई हैव कर्व फिटिंग इज नॉट द टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट रीजनिंग. अगर मेरे पास में कोई ये सारे डेटा हैं एंड आई वांट टू फिट समथिंग, तो मैं ये डालूंगा तो ये एवरेज नहीं आ जाएगा इन सारे पॉइंट्स का. तो मेरे पास में आई हैव दिस डेटा, आई वांट टू फिट दिस डेटा टू अ नोन फंक्शन, and it is what the rapidly increasing. Do you know one function in mathematics which is rapidly increasing? You can relate this thing is to e or something n factorial. What is n factorial? Okay, what is the value of 3 factorial? 6. Okay, what is the value of 4 factorial? 24. ये तो सही आएगा ना? What is the factor 5 factorial? 120. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, rather than going to e फंक्शन, हम क्या करेंगे, इसको n फैक्टोरियल में फिट करने की कोशिश करेंगे. जस्ट इट इज जस्ट माय assumption, ठीक है? आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस assumption कि ये इसके इक्वल है. इन द लास्ट केस मैंने क्या बोला था, इक्वल तो नहीं है ना, दिख तो रहा है, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट टू दिस. इट मींस मुझे इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई, सॉरी इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके इक्वल हो जाए, और या फिर यू कैन से इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए. इट मींस दैट आई कैन से माय dn इज इक्वल्स टू समथिंग cn इनटू n फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? माय dn इज इक्वल्स टू cn इनटू n फैक्टोरियल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल हियर? Okay, what is the, I want to find this recurrence relation for a particular number. So n is equals to 2. So d2 is equals to c2 into 2 factorial. What is the value of d2? 3. Okay, so it is 3. So 3 is equals to c2 into, so what is the value of c2 is 3 by 2 or not? Is it clear? क्या हो गया इसका आंसर? Now, अब अगर आप इसको यहां रखोगे तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा? मतलब इट इज दैट फैक्टर जिससे कि आप उन दोनों को इक्वल कर सकते. दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2. कैन यू फाइंड दिस फॉर जनरल फॉर्म? कैन यू फाइंड दिस इन अ जनरल फॉर्म? हाउ? इफ यू विल राइट ऑल दीज टर्म्स यू विल गेट अ सीक्वेंस. एंड यू नो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस? हम जनरलाइज पैटर्न देखते हैं एंड पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड वी कैन फाइंड द nth टर्म. इज इट क्लियर?
ओके ओके, एक सेकेंड, टाइम क्या हो गया? देखो 5:10 हुए हैं, हाफ एन आवर मुझे और चाहिए, मैं आपको पूरी चीज विजुअलाइज कराऊंगा। इज इट ओके? सही है ना? देखो आज थोड़ा टाइम लगा एंड इट इज व्हाट द लास्ट सेशन। आप लोग सब लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली स्टार्ट। तो अब हमारा एम क्या है? सी ओके, कैन यू कैलकुलेट C3 फास्ट? You have your D3. What is C3? Okay, what is D3 is what? C3 into 3 factorial. Can you calculate the C3? Yes sir, नहीं बताओ मेरे को क्या आएगा। हिमांशु कैलकुलेट। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7/3। इज इट करेक्ट? पक्का? ओके, तो चलो आपके कहने पर मैं लिख रहा हूं D2 इज बाई 3/2, सॉरी C2 ना? ओके या C2 is my 3/2 and C3 is 7/3. Okay, what is C4? This is all about recurrence relation. So once we will have a sequence, we can find out the recurrence relation, na? What is this? 21/8. Okay, so 21/8. Okay, can you give me the like decimal values of for this? What are the values for this? What is the decimal value? 1.5 and next? 2 point? Okay, and next? You have your calculator, na? 1 point? 2 point? Okay, 2.625 and next? C5 is what? Calculate, just you will visualize, you will relate this. What? 324/8. Just calculate, just tell me the answer. 2 point? Exact. And what is C6? 2.715. Okay, see, yeah, it's okay. See, अब आप अगर एक चीज ध्यान से अगर देखें, so these all values are tending to 2.7, 1, 2.72, 2.73 and something. What is this? What is this? Can you get the idea? Okay, हम यहां पर थोड़ी देर बाद में आएंगे। जस्ट कैन यू टेल मी द व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ Cn? कैन आई राइट इधर में इसमें से देख के? ओके, सो इट इज व्हाट? Cn इज इक्वल्स टू, फाइंड कर सकते हैं ये Cn का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट इज माय Dn? जस्ट टेल मी व्हाट इज माय Dn? n into Dn minus 1 plus, okay, and what is my Cn into, is it clear? Can I put these values here? So it is what? Cn n factorial is equals to n, and it is what? Cn minus 1 n minus 1 factorial plus 1. Is it clear? Clear? Okay, and next plus n minus 1. Can you solve this recurrence relation? हाँ, कोई नहीं, मीट देख लेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? अब इसको आप सॉल्व कर सकते। कैन यू फाइंड द Cn वैल्यू? कैन यू फाइंड द Cn?
Okay, see, n factorial n into n minus 1 factorial into cn minus 1. ये n यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस n minus 1. What is this? n minus 1 factorial? N factorial? Okay. So cn n factorial cn minus 1 plus 2n minus 1. Can I divide? Cn is equals to cn minus 1 will get cancelled. Then 2n upon n factorial minus 1 upon n factorial. And cn is equals to cn minus 1 plus 2 upon n minus 1 factorial minus 1 upon. Okay, this is what the recurrence relation. Okay, now can I write this? Ck is equals to summation of cn or ck minus 1, or basically if you will find the value, or if you will find the generalized term ना, so अगर देखो अभी मैं आपको इतना नहीं करा रहा हूं, आप है ना इसमें जनरलाइज, इसमें ये क्या बन गई, सीक्वेंस बन गया ना, 1 प्लस इसमें 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, सो यू विल गेट अ रेकरेंस रिलेशन. ओके, आपने यहाँ पे से क्या C3 फाइंड करो. ओके, व्हाट इज C3? C2 प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? ओके, नाउ C4 इज इक्वल्स टू C3 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन, ऐसे चलता जाएगा. Ck इज इक्वल्स टू Ck प्लस 2 अपॉन या K माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस. Is it clear? Okay. Now, can I add all these things? This will get cancelled. क्या बचेगा यहां से? It will start, n will start from n greater than 2 ना, n 2 नहीं है. So it will what? Ck minus C2. Because ये इधर आ जाएगा, ये C2 इधर आ जाएगा, तो Ck minus C2 एंड ये टर्म ऐड होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 into 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial and something plus 1 upon k minus, and then next will be 1 minus 1 upon 3 factorial 4 factorial up to. Okay, this will be, अगर मैं इसमें 1, okay, what is the value for C2? It is what? 3 by 2. Can I write 3 by 2 as 1 plus 1 by 2? I can shift it there. So it is what? ये माइनस है इधर, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, उधर जाएंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल समथिंग माइनस 1, एंड दिस इज व्हाट माय 1 अपॉन k, क्योंकि इसमें है ना 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा, ऐड होगा ना, ये जो पूरे टर्म है इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी इट इज व्हाट द एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन मैं उसमें ऐड कर रहा हूं. तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कैन आई राइट दिस 1 से k तक, या फिर 1 से n लिख सकते हैं, 1 अपॉन n फैक्टोरियल. एक एक्स्ट्रा 1 यहां पर आएगा, या फिर वो एक्स्ट्रा 1 ना आप यहां शिफ्ट कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा 1 यहां शिफ्ट कर सकते हो. इसको मैं अभी के लिए लाइक लिख रहा हूं, वैसे पूरा सॉल्व करके लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं. तो अब यहां से क्या कर सकते हो आप, ये यहां पर 2 आएगा ना, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप इस टर्म को ट्वाइस में कर सकते हो प्रॉपर, बिकॉज ऑफ दैट ये प्लस में है और ये नेगेटिव है. यहां वाले जो टर्म्स आएंगे उससे एक ज्यादा टर्म इधर आएगा. बट एक चीज आप ध्यान करो, यहां पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेंथ ऑफ दीज बोथ आर इक्वल. इज इट क्लियर? ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से, तो लेंथ इक्वल हुआ या नहीं हुआ दोनों का? सो दीज गेट लाइक कैन बी सॉल्व, दोनों सॉल्व हो सकते हैं. एट द एंड, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एट द एंड यू विल गेट दिस Ck is equals to summation 1 upon, this is what your n factorial, and this is minus 1 upon n. This is not factorial, this is 1 upon n. ये factorial थोड़ी आएगा यहाँ पे. Let me see, factorial 1 upon n minus 1. See, at the end ये factorial नहीं आएगा जब आप इसको इससे सॉल्व करोगे ना, क्योंकि ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, और इसको जब इससे सॉल्व करोगे ना तो ये factorial नहीं आएगा. दिस व्हाट फैक्टोरियल नहीं आएगा. ये आप देखना एक बार ना, आप देखना, इसको चेक करना. एट द एंड ये जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इफ k टेंडिंग टू इंफिनिटी. 1 अपॉन k, ये समीशन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी होगा. इज इट क्लियर? इंफिनिटी होगा भाई, आप ये समझते हो ना, 1 अपॉन k समीशन k टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होगा इसका सम?
जीरो नहीं होगा? पढ़ा होगा इतना तो सीक्वेंस सीरीज में। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज अनदर वे। देखो ये जरूरी नहीं है, आप यहां से भी आइडिया लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको यहां से यहां लाऊंगा। हमने ये कैलकुलेट किया था ना पहले, क्या हुआ? हमने कैलकुलेट किया था ना, तुमने किया था ना? हाँ तो हाँ, एन फैक्टोरियल ही होगा, वो एन फैक्टोरियल ही आएगा ना। जैसे ये जो दर्ज है, ये और यहाँ पे ये माइनस होता है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और बस ये टर्म ठीक है, तो एक टर्म जो मेरे से रह रहा है वो ये है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर समीशन नहीं आएगा ना, इट इज व्हाट ओनली 1/n फैक्टोरियल। क्लियर? ये सीक्वेंस में होता है ना 1/n, समी सीरीज में नहीं होता। दैट्स व्हाट द पॉइंट। या ये सीक्वेंस में होता है, सीरीज में नहीं होता। मतलब मैं बोल सीक्वेंस रहा हूँ, लिख सीरीज रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं सीरीज बोल रहा हूँ, सॉरी, कब से सीक्वेंस बोल रहा हूँ ना। ये सीक्वेंस जीरो होगा उसका, बट सीरीज नहीं होगा ना। सीरीज तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, 1 प्लस करोगे तो वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट टर्म जाएंगे। ठीक है, तो ओके, या दैट्स व्हाट नॉट आवर पॉइंट। हमारा पॉइंट ये है कि चलो अब मैं अगर इसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा, या k लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये जीरो होगा। अब जीरो हो जाएगा, मानते हो? ये क्या है? समीशन। ये क्या हो जाएगा? e। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? e। सो माई cn इज इक्वल्स टू, cn इज इक्वल्स टू e, and my cn is equals to, cn is equals to, this is what? Is it clear ना? E क्या होता है? 2 पॉइंट, सॉरी हाँ 2.73 समथिंग ना, तो इट विल टेंडिंग टू, क्लियर और नॉट? तो ये क्या हो जाएगा? Cn जो होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? तो वो आप यहां से भी पता कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज अनदर स्कीम जिससे आप पता कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप, इट इज इजी टू सी बाय डेटा, ओके, द बिहेवियर ऑफ डेटा। तो आपने देखा ये कितना आया? ई आया। ओके, एंड नाउ व्हाट इज माय dn? dn is equals to cn n factorial, then dn is equals to e into n factorial. Okay, now I want to calculate for dn is equals to n into dn minus 1 plus 1 plus n minus 1. ओके, यहां से मुझे क्या करना है? dn plus 1 निकालना। तो अगर मैं n को n plus 1 से रिप्लेस करता हूं तो इट इज व्हाट? dn plus 1 is equals to n plus 1 and dn plus 1 and it is what? n. इज इट क्लियर? प्लस में। ठीक है, अब यहां पर मैं ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, व्हाट इज द dn plus 1 हियर? e n plus 1 factorial. And I can put these like this value here. It is what? E n plus 1 factorial is equals to n plus 1, and I can find the dn from here. कैसे? इस n को छोड़ दो, क्योंकि इस पूरे टर्म के रेस्पेक्ट में टर्म नेग्लिजिबल है। इसको आप एक बार के लिए ट्रंकेट कर दो। यू नो व्हाट इज द ट्रंकेशन? एक्स्ट्रा टर्म जो होता है उसको, जो रेस्पेक्टिवली छोटा होता है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये ट्रंकेट हो गया। बचा क्या आपके पास में? ये, इसको आप इधर डिवाइड कर दो, n प्लस 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां से आपके पास में क्या आएगा? dn प्लस 1। और इसको भी चाहो तो 1 इस पूरे के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, अभी आप देखोगे, तो उसको भी आप ना नेग्लेक्ट कर सकते हो। यू विल हैव दिस क्वांटिटी। नाउ टेल मी व्हाट इज फॉर माय 100, if my matrix is 100 cross 100, then how many operations will be there? Just calculate and tell me. 100 cross 100 के लिए क्या हो जाएगा? e into 101 factorial divided by 101. Just tell me how many operations will be there. बताओ, just calculate it. इसके what is the value for this quantity? e into dn, number of operations. cn is a factor which is equivalent to, बताया था ये। देखो यहां से हमारे पास में इसका आंसर 3 आ रहा था, या 3 आ रहा था, लेकिन 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। cn हम यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा साइलेंस प्लीज प्लीज।
Cn हम यूज कर रहे हैं, हमने जो डेटा कैलकुलेट किया था ना, जैसे हमारे पास में आया था 3 एंड देन क्या आया था 14, ऐसे ही कुछ था ना। और इसको अगर मैं इक्विवेलेंट करता हूं, ये 2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो मैं फैक्टोरियल में फिट करना चाहता हूं इस डेटा को। तो अगर मुझे इसको इसके इक्विवेलेंट करना है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, इसको इसके बराबर करने, दैट इज व्हाट द फैक्टर Cn। Cn वो फैक्टर है जिससे मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी तो बताया था कि Cn लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि हम उन दोनों को इक्विवेलेंट कर पाए। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? क्लियर हुआ? एक सेकेंड, सी dn का d2 क्या है, d2 क्या, नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इन 2x2 मैट्रिक्स, वो कितने हैं 3 है। और मैं इसको इसके इक्वल रखना चाहता हूं, किसके, n फैक्टोरियल के इक्वल करना चाहता हूं। ओके, सो फॉर माई n इज इक्वल्स टू 2, d2 का वैल्यू 3 आ रहा है, और मैं n फैक्टोरियल के इक्वल करना चाहता हूं, जो कि मेरा क्या है 2 फैक्टोरियल। इट इज नॉट इक्वल ना, इट इज व्हाट, dn इज सॉरी d2 इज इक्विवेलेंट टू 2 फैक्टोरियल। बराबर तो नहीं है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, पहले कुछ ना कोई फैक्टर लगाना पड़ेगा हमको, Cn इज दैट फैक्टर कि वो बराबर हो जाए। अब तुम पूछोगे कि ये n फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई किया, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है और वो हम इजीली यूज कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन ई में आ रहा है, तो ई और फैक्टोरियल, समझ गए ना इस सीरीज का। ये जो मैंने पूरा करा है ना, यू कैन गेट द आइडिया कि यहाँ पर ई क्यों आ रहा है, ये इस सीरीज में फिट हो रहा है ना ई, इस सीरीज का जो प्रॉपर सम आएगा वो ई आएगा, एंड एट द एंड जब आप इस इन सब का सम करोगे तो ई के इक्वल आएगा, अप्रोक्स आएगा, नॉट इक्वल, अप्रोक्स आएगा ई के। ओके, अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ ये वाला, हाथ से थोड़ी करना है। कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू, 9.33 इंटू 150, 150, इज इट क्लियर, पक्का 157 आ रहा है। What is the factorial of this? फैक्टोरियल करना है ना, 159 नहीं आ रहा है, 101 का फैक्टोरियल करो ना यार, क्या आ रहा है, मेरा तो आ रहा है 9.4, आपका फोन अलग दे रहा है क्या आंसर है? अरे यार ये नहीं आएगा क्या, 9.4 टू 10 टू द पावर 159 है, इज इट क्लियर? एंड आप इसमें डिवाइड किसका कर रहे हो, 101 का डिवाइड करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 158 हो जाएगा आई थिंक। इसमें डिवाइड करो, देखो डिवाइड बाय 150 101, तो ये 58 हो जाएगा यहाँ पे। जब आपने इसको डिवाइड किया तो E इंटू वट एवर द क्वांटिटी 10 टू द पावर 158, so this is the number of operations while calculating the determinant of 100 cross 100 matrix. Are you getting? क्या समझे आप? अंजलि, अंजू क्या समझ आया? अंजू, what we are doing? कितने होंगे अगर एक 100 क्रॉस 100 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो? ओके, कितना टाइम लगेगा आपको ये करने में? इतने नंबर ऑफ क्या है आपके पास में ऑपरेशंस आए, कैलकुलेटर में 1 मिनट लगा, हाथ से कैलकुलेट करोगे तो है ना 49 जन्म लग जाएंगे, है ना, 7 जन्म 3 बार होंगे तब ये होगा, फिर भी गलत हो जाएगा, है ना। यू आर गेटिंग द पॉइंट, ये मैं विजुअलाइज करना चाह रहा था। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कत है। वो तो सिर्फ 100 क्रॉस 100 का है, वी विल हैव अ 1000 क्रॉस 1000, 10 टू द पावर 7 क्रॉस 10 टू द पावर 7 मैट्रिक्स सिस्टम भी होता है हमारे पास में, उसको हम सॉल्व करते हैं और बहुत इजीली बस जस्ट एंटर प्रेस करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाई द लाइक प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब एक बार स्लाइड्स में देखो। अब मैं आता हूं आपके गॉस एलिमिनेशन, ये तो क्या था, जनरल था, जो जनरल क्रैमर मेथड या जनरल रिक्वायरमेंट थी उसकी। अब आते हैं आपके
गॉस एलिमिनेशन मेथड पे। सो ये सब कुछ इसमें कर रखा है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, पिवट होता है ना। अब आप अपनी स्लाइड्स में देख सकते हैं, मैं वहीं पर आपको थोड़ा एनोटेशंस करके बता देता हूं। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ओके, स्लाइड्स ऑन है ना? ओके, सी this is your Gauss elimination method, Gauss elimination matrix and upper triangular matrix. See what is this, an upper triangular matrix. Is it clear? नीचे वाले सारे एंट्रीज जीरो होंगे, यहाँ वाले क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे. Is it clear? I am picking one of the pivot element. Okay, it is what my pivot element. अगर मैंने कोई pivot element लिया है, see, you can take the example of 3x3 matrix A, B, C, D, E, F. This is what your upper triangular matrix. मैंने यहाँ से कोई एक pivot उठाया है, तो 3x3 matrix है और इसके अंदर I कितने हैं, 3 हैं, और J कितने हैं, 3 हैं. Is it clear? Okay. अगर मैं बात करता हूं इस pivot के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, 1. मतलब बताओ इस पिवट के इस साइड में कितने एंट्रीज हैं, एक एंट्री है. इस साइड में नीचे 2 नहीं है, 1 ही तो है, 3x3 का सिस्टम है ना, तो मतलब 1 है ना सबके साथ में. इज इट क्लियर? ओके. व्हाट इज दिस? I इज इक्वल्स टू कौन सा रो है, ये वाला, ये वाला. ओके, मैंने कौन सी रो में से पिवट उठाया है, I इज इक्वल्स टू 2. ओके, I इज इक्वल्स टू 2 रो में मुझे उसके राइट साइड में अगर देखना है कितने एलिमेंट है, तो कितना है, एक एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है, मतलब मैंने क्या किया है, टोटल एलिमेंट में से मैं नंबर ऑफ क्या उठाऊंगा, नंबर ऑफ रो. नंबर ऑफ रो कौन सी, सेकंड, -1. तो गॉस एलिमिनेशन का अंदर सिंपल सा सिस्टम है कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द पिवट एलिमेंट एंड इफ यू विल गो राइट हैंड साइड, द एंट्री इज बेसिकली n-i. एंट्री इज बेसिकली n-i. समझ आया बात? पिवट पर अगर आप इधर या इधर देखोगे तो n-i एंट्रीज होंगे. मतलब क्या हुआ, अब आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. मतलब क्या हो गया, आपको हर बार पिवट एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर बार क्या करना पड़ेगा, पिवट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो यहां पर जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सी दैट इज व्हाट वन ऑफ द ट्रिक. लेकिन अगर जनरली अगर आपको करना पड़े तो कैसे करोगे आप ना, पिवट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पिवट एलिमेंट, उससे भी आप इसका रेफरेंस रिलेशन बना सकते हो. देयर इज वन अनदर स्कीम जो कि मैंने यहां मेंशन नहीं की है. यू विल गेट ऑन द इंटरनेट आल्सो. ये वाली स्कीम इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ठीक है. तो इस स्कीम में अगर आप सिंपली जो आप जनरल मेथड है आपका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का, अगर उससे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे सो यू विल हैव n-i स्क्वायर. यू विल हैव n-i स्क्वायर number of multiplication and addition. Multiplication and see. Now it is what summation I is equals to 1 to n-1. अब n-1 तक ही क्यों चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाली जो एंट्री, क्योंकि आप जिस पे खड़े हो उसको तो नहीं ले रहे हो ना, उसको तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो ना. सी, एक काम करना, आप कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उठाना, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, 2x2 का उठा लो, 3x3 का कोई सिस्टम उठा लो, एंड यू कैन गेट. ये आपके लिए होमवर्क है कि कैसे उसको आप ऑब्जर्व करेंगे. मैं आपको बस बेसिक आइडिया देता हूं कि इसका रेकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा. तो ये हो जाएगा n-i होल स्क्वायर, एंड इट विल रन फ्रॉम I इज इक्वल्स टू n-1. क्यों रन होगा आप उसमें देखना, ऑब्जर्व करना. ये इट इज व्हाट द थिंग टू ऑब्जर्व. तो अब अगर आप इसको लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n-1 स्क्वायर, n-2 स्क्वायर, एंड इट इज अप टू व्हाट n-n+1. मतलब कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा. कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा. इज इट क्लियर? कहां तक चलेगा, n-n+1 तक चलेगा. लेकिन सम में जो आप उसको ओपन कर रहे हो तब जब कितना होगा, 1 होगा ना एट द एंड. ओके, अब इसको ऐसे लिखो, 1 + 2 + ऐसे करते जाओगे आप. उल्टा लिखो ना थोड़ा, तो ये क्या बन रहा है, एक सेकंड, इसका स्क्वायर भी तो है ना ऊपर. क्या बनेगा ये स्क्वायर, एंड स्क्वायर कहां तक, n-1 का स्क्वायर.
Okay, what is the square of natural number? What is the sum of square of natural number? 1/6 है ना, n 2n plus 1 into n plus 1. अब आपका n कहां तक चल रहा है? n minus 1 तक चल रहा है. इज इट क्लियर? n कहां तक चल रहा है? तो आप उसमें n minus 1 पुट करोगे तो यू विल गेट दिस रिकरेंस रिलेशन. इसमें सब इसको मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? n cube. That is what your big O. Are you getting the point? What is the concept of big O? यानी कि इसके अंदर भी आपको क्यूब का, अगर 1.1 में 2x2 का सिस्टम सॉल्व हो रहा है तो 8 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा उसके ट्वाइस को सॉल्व करने के लिए. क्लियर? दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इन गॉस एलिमिनेशन मेथड. सेम इन एलयू डिकम्पोजिशन. एलयू डिकम्पोजिशन में भी आप उसी टाइप से कर सकते हैं. एंड व्हाट दिस इज व्हाट माय सिंपल ax is equals to b. गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसको क्या कहते हैं हम? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. क्या कहते हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन. अब बैकवर्ड एलिमिनेशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यही होता है xi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डायगोनल एलिमेंट, जो कि मैंने स्कीम बताई थी bi माइनस समीशन ऑफ i इज इक्वल्स सॉरी j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 ना. नेक्स्ट, क्योंकि पहला वाला तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना गुड़िया, समझ आया? क्लियर? ये वाला तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए हैं. नाउ अब आप क्या कर ले ना, i प्लस 1 तक चलेगा ना. नेक्स्ट आर यू गेटिंग? j इज इक्वल्स टू i प्लस 1. तो क्या हो जाएगा? ये स्कीम बनेगी ना भाई, हमने लास्ट डिस्कस किया था. आर यू गेटिंग? फ्लैशबैक में जाओ थोड़ा सा, समझ आया? तो इस स्कीम में आप देखो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है? n माइनस आई नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. साथ ही में एडिशन भी हो रहे हैं, समीशन टर्म लगा हुआ है. फॉर लूप में दो चीजें चल रही है. पाइथन के बिहाफ पे देखो तो फॉर लूप में दो चीजें, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है. तो क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग? लिख के बताना पड़ेगा मुझे. सी दिस इज माई xi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन aii bi माइनस समीशन j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 टू कहां तक जा रहा है? n तक. एंड aij इंटू x bj सॉरी. क्लियर? अब देखो इधर देखो कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं इसके अंदर. एक मल्टीप्लीकेशन यहां हो रहा है और यहां कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं? हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस? n माइनस आई. n माइनस आई नहीं होंगे? है? क्लियर? आर यू गेटिंग? एक ना आप इसको खोल के देखना. अभी आप हाँ भर रहे हैं, मुझे पता है, ऐसे जल्दी जाने के लिए भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको देखना यहाँ पर कितने होंगे? n माइनस आई. एंड ये सब सॉल्व करने के बाद एक मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी तो हो रहा है ना बाहर, तो कितने हो जाएंगे? n माइनस आई प्लस 1. तो क्या हो जाएंगे आपके पास में? मल्टीप्लीकेशन. इज इट क्लियर? ओके. एंड नेक्स्ट, यहां पर एक एडिशन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है. इज इट क्लियर? वो भी सब में एक एक बार हो रहा है. तो ये वाला रेफरेंस रिलेशन बनेगा यहां से. क्लियर? देखो मैं आपको है ना एक आइडिया दे रहा हूं, एक ट्रिगर पॉइंट दे रहा हूं कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस. रिसर्च करना इट्स अप टू यू, कितना आप उसके बारे में समझ सकते हो, इट्स अप टू यू. आपको इसके बारे में और पता चले तो आप खुद यहां आगे डिस्कस करो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी आई हैड द बिगो कॉन्सेप्ट एंड ऑल. मैंने सब कुछ न्यूमेरिकल में पढ़ रखा था, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले दिनों देखा है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. ये चीजें हमने पढ़ रखी है, बिग ओ एंड कॉन्सेप्ट, ये सब अलग से पढ़ रखा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का अलग अलग होता है. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू. If you guys are collecting some information from somewhere, you can also express like come to here, welcome. इस टाइप के हम सेशंस रखेंगे अनंत. Are you getting? तो ये आपका टास्क है. ऐसे ही नहीं हर बार it is you are not to sit there. आपको यहाँ पर भी आके काम करना है. ओके, ऐसा कुछ रखो. तो ये आप देखेंगे इसमें भी जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो यू विल गेट द 1/3 n क्यूब. एंड इसका बिग ओ कितना हो जाएगा? n क्यूब होगा या नहीं होगा? क्लियर? समझ पा रहे हो? नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो लकी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स. हाउ टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? जस्ट क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ, हाँ, और इनवर्स कैसे निकालोगे उसका? ओके, ये आपके पास में डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मुझे इनवर्स निकालना तो क्या होगा? क्लियर? यही होगा ना. मतलब क्या हो गया?
इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इनवर्स एंड सिस्टम्स और सब। तो अगर मेरा पास में डायगोनल एंट्री का कोई सिस्टम है, ओनली डायगोनल सिस्टम है, तो मेरे को क्या लगेगा, सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन में मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा। दैट्स व्हाई द ऑर्डर वी गो फॉर दिस इज ओनली n. Clear? Can you observe this thing? Can you visualize? This is what the important thing. Clear? Okay. So thank you all of you. ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, and thanks for joining the APM session. I want to call the Mamta. Please come, and Saurav, please come. Thank you. Mamta, पीछे है ना? Okay. So thanks to all of you. Thanks for coming and thanks for joining us. And this is what the last session.